وہ نفلیں خوب پڑھتی ہیں مگر پردہ نہیں کرتی، بباطن دل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ احسان کیا چیز ہے؟ ماں باپ کی احسان کیا چیز ہے؟ محترم حضرات، مذہب اسلام کے اندر ماں باپ کی مقام بہت ہی ہائی لیول پر ہے، بہت ہی ہائی لیول پر ہے، اتنا ہائی لیول پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت کے بعد فوراً ماں باپ کی ذکر کر دیا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے کہ اپنے عبادت کے بعد اور اللہ تعالیٰ نے قرآن نے ارشاد فرما دیا فوراً ماں باپ کی اطاعت کرنے اور ماں باپ کے ساتھ نیک عمل کرنے اور ان سے عاجزی کے ساتھ بات کرنے کے ارشاد فرما دیا۔ ماں باپ کی بہت بڑی مقام ہے۔ ایسے نہیں، ایک صحابہ کرام آتے ہیں، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول ای العمل احب الی اللہ عز وجل، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اے اللہ کے رسول مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، 5970 کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کوئی عمل ہے تو وہ ہے الصلاۃ علی وقتہا، تم وقت پر نماز پڑھ لینا، وقت پر نماز پڑھ لینا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے، آج ہمارے گاؤں دیہاتوں کے اندر دیکھا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی کاموں میں اگر پڑھ جاتے ہیں تو نماز کو عصر کی نماز مغرب میں پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز عشاء میں پڑھ لیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کوئی اگر پسندیدہ چیز ہے، عمل ہے تو وہ وقت میں نماز پڑھ لینا، وقت میں نماز پڑھ لینا۔ وہ صحابہ کرام پھر آگے کیا، اے اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نزدیک اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بر الوالدین، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ عاجزی انکساری کے ساتھ بات کرنا۔ اس صحابہ کرام نے پھر سوال کیا اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا محبوب عمل ہے اللہ کے نزدیک؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی جہاد کرنا۔ محترم ماں باپ کی مقدم کر دیا ہے، ماں باپ کی صلہ رحمی آگے بڑھ گیا اور جہاد کو پیچھے رکھ دیا۔ جہاد کیا جانتے ہیں؟ مذہب اسلام کے اندر جہاد کی مقام بہت ہائی لیول پر ہے، مذہب اسلام کے اندر جہاد کی مقام بہت ہی ہائی لیول پر ہے۔ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب سارے انسان کو کھڑا کیا جائے گا تو وہ شہید لوگ حشر کے میدان میں آئیں گے، ان کے بدنوں سے خون ٹپکتے ہوئے آئیں گے، ان کے بدنوں سے خون سے ٹپک رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سوال کریں گے اے میرے فرشتوں یہ میرے بندے ہیں جو میرے دین کی خاطر شہید کر دیے گئے، ان کو دیکھتے نہیں یہ خون سے لطپت ان کے بدن سے خون ٹپک رہے ہیں، اے میرے فرشتوں جاؤ میرے بندوں کو کہہ دو کہ میں ان کا بغیر حساب و کتاب کو جنت دے دیتا ہوں، جاؤ اس کو میں بغیر حساب و کتاب کو جنت دیتا ہوں۔ یہ ہے مقام جہاد کے بارے میں، یہ ہے مقام شہیدوں کے۔ ان سے بہتر ماں باپ کی بات کرنے کے لیے کہا، ان سے بہتر ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے کہا۔ ایسے نہیں، ایک صحابہ کرام آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ شخص نے کہا کہ ہاں میرے ماں باپ زندہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، جاؤ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ جہاد کرو، صلہ رحمی کرو، یہ تیرے ثواب ملیں گے۔ محترم مذہب اسلام کے اندر بہت ہی بڑی مقام ہے، ماں باپ کی قدر کرنا بہت ہی بڑی مقام ہے۔ اس انسان سے پوچھ کہ ماں باپ کی مقام کیا ہوتے ہیں جن کے ماں باپ مر چکے ہیں، اس انسان سے سوال کر جس کی باپ
दुनिया में नहीं है। इससे सवाल करो, उनसे सवाल करो कि बाप की इज्जत कहाँ है। उस इंसान से पूछ जिनकी माँ जिंदा नहीं है, जिनकी माँ इस दुनिया से चले गए, उनसे पूछिए कि माँ की मोहब्बत क्या है। आज हमारे नजदीक माँ बाप है, आज हमारे नजदीक माँ बाप है, आज हम माँ बाप की कदर नहीं करते। आज हमने माँ बाप को, जिस माँ बाप ने हमको बोली सिखाया, जिस माँ बाप ने हमको बोलना सिखाया, जिस माँ बाप को हमको चलना सिखाया, जिस माँ बाप को हमें खाना सिखाया, जिस माँ बाप ने हमको बचपन से बड़ा किया, आज उसी माँ बाप को मैं अपनी आंखें दिखा रहे हैं, उसी माँ बाप को मैं अपने घरों से बाहर कर रहे हैं। मतलब माँ बाप की मकाम बहुत ही बड़ी है, माँ बाप की मकाम बहुत ही बड़ी है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबा कराम ने सवाल करते हैं, ए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप दोनों जिंदा है, मेरे माँ बाप दोनों जिंदा है, उनमें से सबसे ज्यादा किसका हक है? मेरा सबसे ज्यादा हक किसका है? माँ बाप किसका है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी माँ का ज्यादा हक है। उस सहाबा कराम ने फिर सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल, उसके बाद किसका हक है? अल्लाह के नबी ने फिर जवाब दिया कि तुम्हारी माँ का हक है। जब तीसरी मर्तबा सवाल किया सहाबा कराम ने, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप में सबसे ज्यादा किसका हक है मेरे पर? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सवाल की जवाब देते हैं कि तुम्हारी माँ का ज्यादा हक है। फिर सहाबा कराम ने चौथी मर्तबा जब सवाल किया अल्लाह के रसूल से, ऐ अल्लाह के रसूल, उनके बाद किसका हक है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथा मर्तबा बाप का हक बता दिया है, बाप का बता दिया। ये इससे पता चलता है कि बाप भी कोई गलत नहीं है, बाप भी बड़े बड़े मकाम में आगे है। बच्चे को पालने पोसने में बड़े बड़े मकाम है। वो माँ तीन चीज ऐसे करते हैं जो बाप नहीं कर सकते हैं, इसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनके मकाम को बढ़ा दिया है। जो बच्चे जो डिलीवरी रहते हैं, जो हमल में रहते हैं, वो 9 महीना तक अपने पेट में जो पलते हैं, ये दुनिया किसी भी मर्द नहीं कर सकते। माँ अपने छाती से दूध पिलाते हैं, दुनिया के किसी भी मजहब में मर्द में नहीं कर सकते। इसकी मकाम अल्लाह ताला ने माँ को ज्यादा कर दिया है। मतलब आज सुना जाता है कि मेरा बेटा मुझे खाना नहीं दे रहा है, मेरा बेटा मुझे घर से निकाल रहा है, मेरा बेटा मुझे आंखें दिखा रहे हैं। बाप शिकायत करते हैं, बाप आकर मस्जिदों में शिकायत करते हैं कि चलो फैसला कर दीजिए कि मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मान रहा है, मेरा बेटा मुझे खाना नहीं दे रहा है। इसकी वजह क्या है? इसका वजह क्या है? माँ बाप की भी सबसे बड़ी गलती है, माँ बाप की भी सबसे बड़ी गलती है। हम अपने तरबियत में, अपने औलाद की तरबियत में 0% में है। आज मुआशरे के अंदर देखा जाता है, आज हमारे इलाका में देखा जाता है कि माँ बाप अपने बच्चे के तरबियत में 0% में वरना सहाबा कराम की और बड़े बड़े मुफस्सिर कराम की आते हैं वाकया कि माँ बाप के किरदार क्या होते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में एक सहाबा कराम आते हैं, उनके साथ एक अपने बेटा को साथ में लेके आते हैं और कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मान रहा है, मेरा बेटा मुझसे लड़ाई करता है, ऐ अमीरुल मोमिनीन फैसला कर दीजिए। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फैसला कर देते, उनके बेटे को खूब डरता है। डांटने के बाद उनके बेटा खड़ा हो जाते हैं, वो सहाबा कराम के बेटे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, जो बेटा का हक था जो आप सुना दिए हैं, क्या बाप का मुझ पर कुछ हक है कि नहीं है? कुछ हक है कि नहीं है? अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, हाँ हक है। अमीरुल मोमिनीन बता दीजिए क्या हक है? बाप का हक ये है बेटा पर कि जब बच्चा पैदा हो तो उनका नाम सही से रखे, और जब वो बड़ा होने लगे उनको तरबियत अच्छा से किया जाए, उनको उनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया जाए, और जब वो बालिग तक पहुंच जाए तो उनको एक दीनदार लड़की के साथ शादी किया जाए। वो बच्चे ने सवाल कर दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, ये आप जो 3 चीज बता दिए, बताओ मेरे बाप ने इस पर क्या ध्यान दिया है? ना मुझे सही से नाम रखा है, ना मेरे तरबियत किया हुआ है, और ना मुझे दीनदार लड़की को शादी किया है। तीनों चीज मेरे बापों ने कुछ मेरे पर अमल नहीं किया है। अमीरुल मोमिनीन ने पहले बेटे को धमकाया, उसके बाद बाप को डरना शुरू कर दिया।
बाप को डरना शुरू कर दिया कि तुम ही गलती किया हो कि बच्चे को तुम सही से तरबियत नहीं किए। आज हमारे मुआशरे के अंदर यही होता है कि हम अपने बच्चों को तरबियत नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारी पाले हुए बच्चे मुझे जुदा मार रहे हैं, हमारी पाले हुए औलादे मुझे घर से निकाल रहे हैं, हमारी पाले हुए औलादे हमें को खाने से दूर कर रहे हैं। आज माँ बाप की सबसे बड़ी गलती हो रही है, आज माँ बाप की सबसे बड़ी गलती हो रही है। वरना मुफस्सिर किराम कहते हैं, आप लोग सुने होंगे अल्लामा इकबाल जो शायर पूरी दुनिया में मशहूर है, अल्लामा इकबाल के बारे में सुने होंगे कि अल्लामा इकबाल जब जन्म हुए थे, अल्लामा इकबाल जब जन्म लिए थे, उनके बाप एक सूद की कारोबार करते थे। अल्लामा इकबाल के बाप सूद की कारोबार करते थे। जब जन्म हुआ तो उनकी मां ने ये वसीयत कर ली कि मैं अपने बेटा को एक दाने भी इनके पेट में हराम चीज नहीं घुसाऊंगा, एक दाने भी अपने बेटा को हराम चीज नहीं खिलाऊंगा। और मेरे शोहर का जो काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, ये सूद की कारोबार है, मैं अपने बेटा को सूद की एक भी हराम खाने नहीं दूंगा। क्या किया अल्लामा इकबाल की मां ने? अपने जेवरात को जो हलाल कमाई से था, अपने जेवरात को बेच देते हैं, अपने जेवरात को बेच करके एक दुधारी बकरी को खरीदते हैं और उस बकरी में जो दूध देते हैं, उस दूध से अल्लामा इकबाल को पालते हैं। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद अल्लामा इकबाल के बाप ने उस सूद की कारोबार छोड़ देते हैं और हलाल कमाई में लग जाते हैं। और उनके माँ ने अपने बच्चे को परवरिश उस बकरी के दूध से किए, हलाल कमाई से किया, अपने छाती का दूध नहीं पिलाए, क्योंकि मेरे शोहर ने हराम कमाते हैं और मैं भी खाते, मेरे शोहर में खाते, अगर मेरे दूध पे मेरे बच्चे पिएंगे तो हराम का ग़िज़ा उनके पेट में चले जाएंगे। ये माँ की मकाम थे कि अपने बच्चों को पालने में सबसे आगे थे और अपने बच्चों को एक बेहतरीन पाला जो पूरे दुनिया के अंदर वो अल्लामा इकबाल जिसे जानते हैं। आज वो शायर में पूरी दुनिया में नंबर 1 है। आज अपने बच्चों को पालने में देखिए, कभी आप अपने बच्चों को घर में बैठा करके बेटा झूठ नहीं बोलना, बेटा गुनाह नहीं करना, बेटा गाली नहीं देना, बेटा नमाज पढ़ो, बेटा जब खाने के वक्त हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, दाहिने हाथ से खाओ, खाने के बाद तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। किसी ने अपने बेटे को बैठा कर कहा? नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, जिसकी वजह से आज मेरा ही बिल्ली मुझे घूमने कर रहा है। आप शिकायत करते हैं मेरा बेटा कहना नहीं मान रहा है, मेरा बेटा मुझे घर से निकाल रहा है। बाप माँ की 95% गलती हम बाप माँ को देखते हैं, 95% मेरे बाप माँ को देखते हैं। वरना बहुत सारे ऐसे आते हैं कि एक ताबीन औरत कहती है कि जब मेरा बेटा जब भी पेशाब करते थे मैं इसको अज़ा अफसोस को पानी से धो देते थे, मैं इनको शर्मगाह से धो देते थे। जब मेरा बेटा छोटा था तो मैं अपने बेटा पर पेशाब करने के बाद पानी से धो देते थे। मैंने एक दिन कुछ साल के बाद देखते हैं जब मेरा बेटा चलने लगते हैं, मेरा बेटा चल बुन लगते हैं, एक दिन देख रहे हैं जब पेशाब कर रहे तो अपने पेशाब को इस्तिंजा खाना को धो रहे हैं, अपने से इस्तिंजा को धो रहे। ये माँ की मकाम है, जिस तरह बच्चों को तुम सिखाओगे बड़े होकर उसी तरह बच्चे अमल करेंगे। माँ ने कुछ साल बच्चों को तरबियत दिया, पेशाब करने के बाद वो बच्चों को तरबियत को धो देते थे, पेशाब इस्तिंजा को धो देते थे। बच्चे जब चल बोलने लगे तो अपने से पेशाब करने के बाद वो अपने से इस्तिंजा को धोने लगे। ये थी माँ की तरबियत, ये है माँ की तरबियत। आज हमारी 95% माँ बाप की कोई अमल नहीं होते। जाओ बेटा पढ़ने चले जाओ, चाहे पढ़ो चाहे खेलो चाहे कुछ भी करो, कोई अमल नहीं होती। अरे बड़े हो गए, जवान हो गए, चलो शादी दे देते, अरे चलो काम करने चले जाओ, शादी। तरबियत में 0% आज हमारे मुआशरे के अंदर है, जिसकी वजह से आज हमारे ये मुंह देखना पड़ता है, जिसकी वजह से आज हमारी ये शिकायत आते हैं कि बेटा ने माँ को मार दिया है, बेटा ने बाप को घर से निकाल दिया है। तरबियत सही से किया करो। अगर घर को चेंजिंग देखना चाहते हैं, अगर घर को इनकलाब देखना चाहते हैं, अगर घर को रोशनी देखना चाहते हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। जब तक अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, सही तरबियत नहीं देंगे तो आपका घर में कभी चिराग नहीं हो सकता है, आपके घर में कभी रोशनी नहीं हो सकता है। बहुत बड़ी मकाम आप सुने हैं, अब्दुल कादिर जिलानी
अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी को आप सुने होंगे, इनके वाकया में सुने होंगे, कोई मैं नया नहीं कर रहा हूँ, आप सुने होंगे बहुत सारे तकरीरों में। मैं फिर बता देता हूँ, अब्दुल कादिर जिलानी जब छोटे थे, जब बचपन के गुजार रहे थे, एक मतलब वो सफर में जा रहे थे। अब्दुल कादिर जिलानी हिंदुस्तान में उनको इस्लाम फैलाने में बहुत ही बड़ी कुर्बानियां हैं, बहुत ही बड़ी कुर्बानियां हैं। वो अब्दुल कादिर जिलानी जो सफर में जा रहे थे, कई सफर में जा रहे थे, और उस जमाने में बहुत सारे डकैत के काम होते थे, चोरी चंडाल के काम होते थे, डकैत के काम होते थे। उनकी माँ ने अब्दुल कादिर जिलानी को घर में बैठा कर कहा कि बेटा तुम जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना, चाहे तुमको गोली मार दे, चाहे तुमको कत्ल कर दे, चाहे तुमको आग में डाल दे, लेकिन तुम कभी झूठ नहीं बोलना। ये किसने कहा रहा है? उनकी माँ ने अपने बेटे को वसीयत कर रहा है, उनके माँ ने अपने बेटे को वसीयत कर रहा है। और 40 दिरहम अब्दुल कादिर जिलानी की 40 दिरहम उनके माँ ने अपने बेटे को इस कपड़े का आस्तीन में सील देते हैं, पैसा रखकर कपड़े में सुई धागे से सील देते हैं और कहते हैं ये बेटा तुम जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना, चाहे तुमको मौत की घाट उतार दे, लेकिन तुम झूठ नहीं बोलना। अब्दुल कादिर जिलानी सफर करने लगे, पढ़ाई के दौर में सफर करते थे या कुछ चीज में। अब्दुल कादिर जिलानी सफर करते रास्ते में डकैत में घेर लेते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी को रास्ते में डकैत में घेर लेते हैं। उनके जो साथी थे, उनके पास जितने आदमी थे, सबके सामान को लूट लेते हैं, सबकी पैसा को लूट लेते हैं। आखिर में आते हैं अब्दुल कादिर जिलानी के पास, वो डकैत आते हैं अब्दुल कादिर जिलानी के पास, 55 से बच्चे होते हैं उनके पास। डकैतों ने अब्दुल कादिर जिलानी के पास पूरे बैग को देखा, पूरे बदन में देखा, कहीं पैसा नहीं मिला, कहीं पर पैसा नहीं मिला। उसके बाद डकैतों ने अब्दुल कादिर जिलानी को बैठा कर कहा बेटा तुम्हारे पास कुछ है कि नहीं, तुम्हारे पास तुम सफर कर रहे हैं, तुम्हारे पास कुछ है कि नहीं? अब्दुल कादिर जिलानी कहा मेरे पास है 40 दिरहम है, मेरे माँ ने मुझे 40 दिरहम दिया। बेटा तुम कहाँ है? वो दिरहम कहाँ है? इस जगह से खोल कर दिखा देते हैं, यहाँ मेरे माँ ने पैसा को यहाँ रख दिया है, आस्तीन में छुपा कर रख दिया है। वो डकैत हैरान हो जाते हैं कि बेटा तुमने सच क्यों बोल दिया, अगर तुम नहीं बोलते तो मैं तुमको छोड़ देता, तुम सच क्यों बोल दिया है, क्यों तुमने सच बोल दिया है? अब्दुल कादिर जिलानी क्या जवाब देते जानते हैं? अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि मेरे माँ ने वसीयत किया है कि बेटा तुम कभी झूठ नहीं बोला, तुम कभी झूठ मत बोलो, जिसकी वजह से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और मेरी माँ ने ये पैसा यहाँ पर रख दिया, इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं पैसा मेरे इस जगह में रखा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और डकैत ने अपने उस बच्चे की बातों को शर्मिंदा हुए, सुन करके बच्चे के बातों को डकैत शर्मिंदा हो जाते हैं और लूटे हुए सामान को लोगों को दे देते हैं, लूटे हुए सामान को लोगों को दे देते हैं। और उस दिन से तौबा कर लेते हैं। वो जितना भी डकैत होते थे, जितना भी चोर होते थे, सारे चोर ने, सारे डकैत ने उस दिन से तौबा कर लेते हैं। बच्चे की एक लफ्ज पर कि मेरे माँ ने झूठ बोलने से मना कर दिया है, इसकी वजह से मैंने हक का सच बोलकर बता दिया कि मेरे पास इतना धर्म है। वो तमाम के तमाम डकैत वो दीनदार बन जाते हैं। वो तमाम के तमाम डकैत इस दिन से चोरी करना छोड़ देते हैं, डकैत करना छोड़ देते हैं। मुद्रादार आज हमारे अंदर बच्चे को पालने में आज हम सबसे पीछे हो चुके हैं, जिसकी वजह से आज हमारे ये मुंह देखना पड़ता है। और एक वाक्य बता देता हूँ, आप लोग सुने होंगे इमाम बुखारी को सुने होंगे। कोई भी दुनिया के मुल्की डिग्री ले नहीं सकता जब तक कि वो इमाम बुखारी की किताब सही बुखारी नहीं पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो आप डिग्री नहीं ले सकते हैं। उस किताब को लिखने वाले इमाम बुखारी जब बचपन में थे उनका ध्यान, उनकी जो याददाश्त बहुत ही तेज था, लेकिन वो अंधे थे, वो नाबीना थे, वो काना हो गए थे, नाबीना थे। उनके माँ ने जब भी नमाज पढ़ते थे तो रोजाना सुबह शाम अपने बेटे के लिए दुआ कर देते थे, ये अल्लाह मेरे बेटे को रोशनी दे दो, मेरे बेटे को रोशनी दे दो। वो सुबह शाम अपने बेटे के लिए दुआ करते थे। इमाम बुखारी की माँ ने सुबह शाम अपने बेटे के लिए दुआ करते थे कि मेरे बेटे को रोशनी दे दे। एक रात को सपन में आते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सपना में आते थे और कहते हैं ऐ इमाम बुखारी की अम्मी, जाओ तुम्हारे बेटे कल से रोशनी और दीन को देख पाएंगे। वो तुम्हारे बेटे को रोशनी को लौटा दिए हैं, जाओ तुम्हारे बेटे कल से दीन को देख
पाएंगे। उनकी माँ की दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल कर दिया है, उनकी माँ की दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल कर दिया है। ये थी माँ बाप की कुर्बानी अपने बच्चे को पालने में, ये थी माँ बाप की कुर्बानी अपने बच्चों को पालने में। और हम कैसे पालते बाप सिखाते बच्चों को गाली देने के लिए, माँ बाप सिखाते बच्चों को गुटखा खाने के लिए, जाओ बेटे गुटखा लेके आओ, जाओ बेटे बीड़ी लेके आओ। बच्चे सीख रहे, बाप मंगा रहे हैं, बच्चे सीख रहे। ये आज हमारे मुआशरे के अंदर होते हैं। जाओ बेटे खैनी लेके आओ, जाओ बेटे गुटखा लेके आओ, जाओ बेटे फल्ला चीज लेके आओ। आज मुआशरे के अंदर बाप हर चीज सिखाते हैं, गाली भी सिखाते हैं। छोटी छोटी बातों में माँ गाली दे देते बच्चों को, माँ बच्चों के सामने गाली दूसरों को दे देते।